नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज एक बार फिर निक्की मल्होत्रा जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरुजी महाराज की और संगत, बैच संगत, आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय गुरुजी। निक्की आंटी, ओवर टू यू। प्लीज संगत शेयरिंग करें। Jai Guruji, am I audible? यू आर ऑडिबल निक्की जी। जय गुरुजी। Jai Guruji, Uncle. Jai Guruji, Sat Sangat ji, and it's wonderful to be on this platform again, जहाँ पे हमें गुरुजी के बारे में बोलने का और उनकी आई थिंक उनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ के बारे में बात करने का एक मौका दिया जाता है. And like we know, it's a blessing both ways. It's a blessing for us and it's a blessing for the Sangat. And हर बार ऐसा लगता है कि जितना गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, हम उसको बयान नहीं कर पाते. आई मीन, देर आर ब्लेसिंग्स एवरी सेकेंड ऑफ द डे. देर इज अ ब्लेसिंग इन एवरीथिंग. बट उसको to express it and to put it in words and to put it across is so difficult. It's so difficult at times. There are times जब आपको लगता है कि there is so much that you want to say, there is so much that you want to talk about Guruji's blessings, but जब बोलने का मौका आता है तो वो शब्द ही नहीं मिलते to explain uh, you know how he is taking care of each and every aspect of our life. So Sat Sangaji, my journey with Guruji started when I was very young. And I was fortunate enough to meet Guruji at a young age when I was 11 years old. And I met Guruji in 1991. Sorry, in 1992, I met Guruji in January in Jalandhar. 1991, I had met with a very, very bad accident. Um, and this accident was actually a turning point. वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा एक बुरा वक्त आ जाता है आपकी लाइफ में, which turns out to be, I think, a turning point in your life, which becomes a reason to change your path in life. और ये जो एक एक्सीडेंट था, उसकी वजह से आई थिंक हमारी पूरी फैमिली की लाइफ की जो दिशा है वो बदल गई. We were fortunate to meet Guruji after this accident. And it just completely changed us. It's completely changed us as human beings, as people, the way we think, the way we function in this life. We're just so different from what we were जब गुरुजी से हम नहीं मिले थे. और आई थिंक ये गुरुजी का जो एक हमारा जो एक गुरुजी के हमारी लाइफ में आने का जो मतलब है, आई थिंक ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि हम अपने आप को अंदर से कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, करते हैं या नहीं करते. हमारी कॉन्शियसनेस कितनी जागती है. What kind of human beings we become, and are we better people? Do we become better? Do we become braver? Do we become stronger? ये सारी चीजें हैं जिससे आई थिंक यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रेजेंस ऑफ गुरुजी इन योर लाइफ. एंड आई थिंक ये गुरुजी का बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फॉर एवरीवन इन माय फैमिली, दैट आई थिंक it has brought about a tremendous change in us as human beings. सो मिलना गुरुजी के साथ, जैसे गुरुजी कहते थे, एक गुरुजी नहीं दिखा हुआ है, गुरुजी ही रीजन देते हैं, गुरुजी ही पता प्लान करते हैं. सो in 1991, when I met with that accident, it was a very bad accident, and I was in coma for many months. I was in and out of hospitals. I was under a lot of
care. I was under a lot of medical care, a lot of tests, and I had paralysis, I had Bell's palsy, I had lost a lot of blood, I had a serious head injury, I had some small fractures in my skull. uh, I had double vision. I had I mean, it was a very, very bad situation to be in. So this accident happened. I went into coma. I was in and out of hospitals. Matlab PGI Chandigarh, from Command Hospital, Chandi Mandir, to All India Institute, New Delhi. तो ये हॉस्पिटल्स के चक्कर और मेडिकेशंस और डॉक्टर विजिट्स, ये सब चलता गया। और फाइनली मेरे फादर की पोस्टिंग जालंधर में थी, बट हम लोग जालंधर से दिल्ली कोई काम के लिए आए थे। जब हम वापस जा रहे थे तो ये एक्सीडेंट हुआ था। So when we were going back, when we met with the accident, we could not go back home. तो हम लोग जालंधर ही नहीं गए। बहुत महीने निकल गए, ऑलमोस्ट अ ईयर। हम जा ही नहीं पाए घर, क्योंकि आई वाज इन कोमा एंड देन आई वाज इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। फाइनली 1991 एंड में जब मेरा एक ऑपरेशन हुआ ऑल इंस्टीट्यूट में, देन द डॉक्टर सेड दैट हमें थोड़ी देर के लिए घर जाना चाहिए। एंड उन्होंने कहा टू कम बैक फॉर सम मोर टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो हम लोग वहां से वी केम बैक टू जालंधर इन 1991 एंड। एंड जैसे हमें पता है कि गुरुजी के कितने तरीके होते हैं, कोई संगत को बुलाने के, कोई संगत को अपने पास बुलाने के लिए। तो गुरुजी ने किसी ना किसी के थ्रू बहुत बुलावे भेजे, बहुत लोगों को कहा कि मल्होत्रा नु कहो मेरे पास आए। बट इस एक्सीडेंट की वजह से वी हम लोग बहुत हिले हुए थे। वी वर वेरी शेकन अप, वी वर वेरी ट्रबल्ड, वी वर वेरी disturbed. And so immediately to we didn't go, and my parents were Arya Samaji, so the whole concept of guru and everything was also not very well understood. So बट ये गुरुजी का प्यार था कि गुरुजी कोई ना कोई रीजन से कोई ना कोई मैसेज आता रहता था, बट हम नहीं गए। फिर एक दिन आई थिंक जनवरी बिगिनिंग में, फर्स्ट वीक में, देयर वाज दिस आंटी हु वाज ऑन अ वे टू गुरुजी। शी केम होम, शी सैट डाउन एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुरुजी। एंड जैसे जैसे वो बात करती गई, आई वाज 11 years old, and my mother and me, we were just so we just wanted to know more and more about Guruji. Jaise she started talking. And my mother was desperately looking, obviously for some hope in life. Kyunki doctors had not given a very clear picture of my future. So she was desperate for some hope. And she felt, I think, hope when that auntie was talking about Guruji. And in some time, we and my mother, we were ready to go to Guruji. And Sangaji, it was around the 5th to 6th of January 1992, and it's today. And this journey with Guruji has been extremely blissful, so emotional, so overwhelming, so loving, so full of. I mean, there are no words to describe कि this journey गुरुजी के साथ कैसे रही है। बहुत टेस्ट आए हैं, अभी भी हैं, आते रहते हैं। जैसे हमें पता है कि as human beings we have a lot of karmas to sort out in our life. There are a lot of troubles that we face. But the beauty of, having Guruji by your side is that Guruji makes you cross these obstacles or these situations in life with so much of ease, with so much of grace, with so much of, I don't know, strength. So I've experienced a lot. And I would just say that, my journey right from being a child to getting married to, reaching my middle age, uh, it's been completely and completely designed by Guruji. It's in his hands. और सबकॉन्शियसली आई नो सरेंडर एक बहुत बड़ा शब्द है,
बट हम करते हैं सरेंडर, जो समझते हैं या जो भी हमें जितनी हमारी बुद्धि है समझने की, कहीं ना कहीं सरेंडर होता है। और सरेंडर बहुत लेवल्स पे होता है। सरेंडर मतलब इतनी चीजों में गुरुजी सिखाते हैं क्या होता है सरेंडर। Losing my mother to cancer about 1.5 to 2 years back, and and knowing that this is how Guruji had planned it is surrender. Coping up with the loss of my mother was surrender, is surrender. Because somewhere down the line ये भी पता है कि जीवन देने वाले भी गुरुजी हैं। और आपका कब टाइम अप हो जाता है वो डिसाइड करने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो शुरुआत भी यही है, अंत भी यही है। तो किसी बात का कोई उस तरीके का ना कोई डर है, ना कोई आई थिंक क्वेश्चन है। बिकॉज जब आप यू नो धीरे धीरे अपनी लाइफ को गुरुजी के चरण पे डालते हो, to understand that he's responsible for whichever direction your life takes you in. And as a human being and as a person, हमारी बुद्धि और हमारी सोच बहुत लिमिटेड है। I mean, you cannot think beyond a certain point. यहाँ पे भी गुरुजी सिखाते हैं कि तुम उतना ही सोच सकते हो जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, बट आई कैन सी सो मच मोर बियॉन्ड। ये सारी चीजें सीखी देखी गुरुजी के साथ, समझी। And as the years went by, kept learning. You cannot learn in one day. You cannot learn in a month. You learn with situations in life. You learn with experiences in life. But गुरुजी को जब हम पहली बार मिले थे 1992 में 5th और 6th ऑफ जनवरी में, गुरुजी की तरफ जो इंस्टेंट जो प्यार था और एक इंस्टेंट सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी थी, वो बयान करना बहुत मुश्किल है। एंड आई थिंक वो सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स था, है और हमेशा रहेगा। जो प्यार है गुरुजी के लिए और जो एक अट्रैक्शन है और जो गुरुजी के साथ जुड़ने की जो एक हर सेकंड जो इच्छा रहती है, आ, वो आज भी कायम है। और गुरुजी से हमेशा प्रेयर्स इसी की रहती हैं कि गुरुजी बस ये कभी कम ना हो, और बस अपने चरण पे जोड़ के रखना। क्योंकि गुरुजी की ही कही हुई सेंटेंसेस हैं कि जो एक कांस्टेंट फैक्टर आपकी लाइफ में है वो है गुरुजी। बाकी रिलेशनशिप्स, वर्क, मनी, everything will just come and go. Nothing is constant, nothing. So it's very important that we understand this and we realize that Guruji is our constant in our life. And कभी हम घबराए ना, कभी हम होप हमारी होप कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमेशा ये याद रखो कि अगर कुछ बुरा वक्त भी है तो वो भी उन्हीं की मर्जी से है, वो निकालेंगे जैसे भी निकालेंगे। सो जब हम गुरुजी के पास आए और वो जो इंस्टेंट जो कनेक्शन और जो प्यार गुरुजी के साथ जो फील हुआ, वो बयान करना बहुत मुश्किल है। लाइक आई सेड, एंड इट वाज इंस्टेंट लव फॉर गुरुजी एट फर्स्ट साइट। Faith and surrender happened as the time went by, but the मतलब हमें कभी आई थिंक हमारी फैमिली में कभी भी ये हमें दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी शुड प्रूव टू अस दैट he is the God himself, he's the Lord himself, he's Lord Shiva himself. We never felt the need for that, because looking at Guruji and Guruji का जो रूप था और जो रूप है गुरुजी का, वो काफी है बताने के लिए कि ही इज गॉड। तो हमने कभी ना इतना ज्यादा दिमाग लगाया, ना कभी इतना क्वेश्चन करा। फॉर अस ही इज अ गॉड, ही इज एवरीथिंग, एवरीथिंग फॉर अस। So this journey started when I went to Guruji in a situation where I was not okay. And slowly, you know पहले ही दिन जब हम गए तो गुरुजी was very, he was very very kind that he
kind of blessed me, and he said पहली दिन की कल्याण किया, थोड़े दिनों के बाद बोला कि सारी दवाइयां फेंक दो। गुरुजी जालंधर में पान के पत्ते जल अमृत के साथ बहुत गुरुजी कहते थे ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट वो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए था। बट ये सब गुरुजी ने जालंधर में ऑफ कोर्स करा, बट इवेंचुअली आई डिड नॉट हैव अ सिंगल ऑपरेशन अगेन, जहाँ पे डॉक्टर्स को मेरे फ्यूचर के बारे में पता भी नहीं था, और उन्होंने कितना कुछ कहा था कि ये इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उस चीज की जरूरत पड़ेगी। I did not touch a single medicine. I never came back to All India Institute. I never had a single operation ever again. And I was completely cured in some time by being at Guruji's feet, by being with him day in and day out, by being in his sharan, and लंगर खाना, गुरुजी के साथ रहना, गुरुजी के साथ उठना बैठना। हम लोग जालंधर में थे तो पास में ही थे बिल्कुल, हमारा स्कूल भी गुरुजी के पास था, तो हम स्कूल से ही आ जाते थे। तो ऐसा बचपन जो बिताया गुरुजी के साथ, वो आई थिंक just cannot be explained. And I mean, no words to say that it has been the most beautiful journey of our life. So this is how it started. This is how the journey started. This is how I got cured. And I had missed one entire year of school. But one day गुरुजी, हम ऐसे गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, और मैंने बस गुरुजी को बोला, हम ऐसे कैजुअली बैठे हुए थे गुरुजी के साथ, एंड गुरुजी सेड, ही टोल्ड माय मदर दैट इसको अगली क्लास विच डाल दो। एंड मेरा एक पूरा साल मिस हो चुका था स्कूल का, तो कोई चांस नहीं था कि आपको कोई भी स्कूल आपको दूसरी क्लास में डाल देगा बिना आपके उस ईयर को कंप्लीट करे। बट गुरुजी का जो वचन था वो लास्ट और अल्टीमेट स्टेटमेंट था, उसके ऊपर ना कभी क्वेश्चन करना चाहिए, ना कभी दिमाग लगाना चाहिए, ना कभी कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। एंड आई थिंक ये हम धीरे धीरे जान चुके थे, सीख चुके थे। सो जब गुरुजी ने ये कहा कि इसको अगली क्लास में डाल दो, तो हम लोग गए, स्कूल गए, और जैसे ही वहां पे गए तो द प्रिंसिपल, जो सबसे पहली चीज जो प्रिंसिपल ने कहा, शी सेड दैट आई डोंट वांट टू waste a single year of her life, and I'm promoting her to the next standard. So this was Guruji's blessing, and I think Guruji obviously tests, क्योंकि कई बार हमें ऐसे लगता है कि ये पता नहीं ये ऐसे होगा या नहीं हो पाएगा, but Guruji made it happen, and he made it happen. He saw to it that he tested us by saying something which did not look very practical, but आई थिंक बहुत बहुत बारी गुरुजी ऐसी चीजें बोलते थे जो प्रैक्टिकली लगता था कि ये कैसे होगा, राइट। एंड यही गुरुजी का वो था कि वो आपको कुछ कहते थे और आपको अपना दिमाग लगाना बंद करना था। एंड ही यूज्ड टू से कि जब इतने इफ्स एंड बट्स होंगे, तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू ब्लेस यू विथ। So he used to say that you have to leave your mind outside. You have to kind of understand that your mind cannot understand what is he trying to bless you with. So, um, एट आई थिंक ये बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है, बट ऐसे बहुत सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको कोई लगता है कि गुरुजी ने कोई आपको एक दिशा दिखाई है या आपको कुछ बोला है करने के लिए, जो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट लगता है। बट यही गुरुजी का टेस्ट है कि जब वो आपको कुछ ऐसा कहते हैं या बोलते हैं, तो अपना दिमाग ना लगा के और बिना ये सोचे कि इसका आउटकम क्या होगा, उस चीज को पूरी शिद्दत से करना, और उसको फॉलो थ्रू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और इसी सिचुएशन और इसी थॉट पे जो एक मतलब ऐसे इंस्टेंसेस हुए, when I was married, and after I got married I was just
what do you call, working. And one day I was sitting with Guruji in Empire Estate, and suddenly Guruji ने मुझे कहा, I was not even mentally prepared, और गुरुजी ने एकदम से कहा कि अब तू जा और तू और पढ़, तू मास्टर्स कर. And I was not ready. So, but Guruji said कि तू जा. So, it was out of the blue, and we were not ready. We had not even thought something like this. And Guruji ने कहा कि बस इतने दिनों में तूने चले जाना है. And he gave me a little limited time. And I started preparing, I started applying, and I got my admission, and I was going. It was very difficult emotionally and mentally because I had just a year and a half that I was married. But जैसे कहते हैं गुरुजी की बात को नहीं टालना, तो कोशिश हमेशा ये रहती है. As human beings, we tend to sometimes subconsciously make mistakes. We don't want to do it, knowingly, but सबकॉन्शियसली कभी कभी हो जाती हैं गलतियां. बट आई थिंक एहसास ये रहता है कि ना हो. So we prepared to go, and I was preparing to go. I was very upset and emotional in leaving behind Guruji and my family and everybody. But I did what Guruji told me to do. And I was going to Bangalore from Delhi, and I went, and पीछे से there was some what do you call, some uh, IAS officers and some gathering of people that Guruji was going to bless. And he called my father to that gathering, my father and mother. And उनको पापा गुरुजी ने पापा को डेक्कन एयरलाइंस, एक एयरलाइंस थी जो आई थी थोड़े टाइम के लिए इन दिस मस्ट बी अराउंड 2005 2006. सो गुरुजी ने उस डेक्कन एयरलाइंस के जो ओनर थे उनसे मिलवाया. ही वाज आल्सो एक्स एक्स आर्मी और एयरफोर्स एक्स एयरफोर्स. उनसे मिलवाया. So my father met him and everything, and then we came to know that the Deccan Airlines was launched, and uh, the 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 owner was in touch with my father, and my father was able to get these tickets, airline tickets, which were for 500 rupees between Delhi and Bangalore. And the beauty was that I just got those tickets within a month of going to Bangalore. एक महीने में वो tickets मेरे पास थी, और मैं हर 10 या 12 दिन में मैं गुरुजी के पास थी. एंड वो डेक्कन एयरलाइंस बंद हो गई. दो आई थिंक within 2 to 3 years it got shut down. And he just made it so simple and so smooth for me that it was unbelievable. Here I was feeling so upset that I have to leave behind, Guruji and family. But Guruji ने कहा है जाने के लिए, so जाना तो है. ये हमेशा थॉट प्रोसेस रही है और आज भी है कि आप पहले गुरुजी का बताया हुआ जो वचन है उसको पूरा फॉलो करो, और कोई दिमाग नहीं लगाना, मतलब बिल्कुल भी नहीं लगाना. So this is how he does it, and it was so comfortable कि मुझे लगा ही नहीं कि I had gone away from Guruji or the family. So this was something which happened, and I think every step of my life, Guruji's blessed me. Even when I hadn't planned my children, I was pressing Guruji's feet one day, and Guruji ने मुझे एक दिन कहा कि तूने फैमिली प्लान की है? तो मैंने गुरुजी को कहा नहीं गुरुजी, आप जैसे बोलो. तो गुरुजी, अभी मैं पढ़ रही थी, यही वाला मास्टर्स कोर्स कर रही थी. तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू ये मास्टर्स कोर्स जब तेरा पूरा हो जाएगा और जब तेरे को अपनी डिग्री मिलेगी तब तू प्लान करना, और इसको खत्म होने में अभी 1-1.5 साल था. तो गुरुजी ने कहा तब तू प्लान करना, और मैंने तेरे को मुंडा ब्लेस किया. सो अभी इस सारी चीज को 1.5 साल था, एंड जैसे गुरुजी ने कहा आई planned, and when I conceived I knew that I was going to have a son. So this is how he takes care of all the, I think things which are so important in your life. I got married uh,
with Guruji's blessings. In 1994 और 1995 गुरुजी ने एक दिन बड़ा ही मुझे कैजुअली, जलंधर के मंदिर में हम थे और गुरुजी अंदर समाधि में थे, मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी और गुरुजी एकदम से आए समाधि से बाहर एंड ही गिव मी वेरी नाइस टाइट हग, बहुत प्यार दिया और गुरुजी ने कहा कि मैं तेरी शादी अशोका होटल विच कराऊंगा. And I was young. I hadn't even thought of, I mean, at that age, you don't think of marriage. I was just in ninth standard. And तो हम भूल गए, हम बहुत खुश थे सुनकर, बट हम उसके बाद भूल गए. फिर फाइनली 2002 में जब मैं गुरुजी के पास आई थी अपना बैचलर्स करके, तो जब मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने सबसे पहली चीज ये बोली कि ए साल खत्म होने से पहले तूने शादी कर लेनी है. So my father didn't have much time to, plan. I mean, there were hardly any, few months only left. It was already July. We took out a date for December. So my father tried for booking everywhere, but he did not get booking anywhere. He just got booking only in Ashoka Hotel. In the end, that also, there was an ex-army officer who gave him a good discount, and it happened so comfortably, so smoothly. जो गुरुजी ने इतने सालों पहले बोला था. यू नो ये सारी चीजें, ये सब कुछ लाइफ में आपको दिखाता है कि एक एक चीज गुरुजी के हवाले और गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दो. और इसका मतलब ये नहीं है कि we don't go through a lot of tests. At the same time, we go through a lot of tests. When I was to get married and we were waiting for Guruji to, finally say who the boy is, Guruji did not mention anything for a very long time. But at the same time, Guruji made sure that the preparations for the wedding were happening. So पूरा 2002 जुलाई के बाद सारी तैयारियां हो रही थी एंड नवंबर तक आ गया था एंड डेट निकल चुकी थी, बट गुरुजी ने लड़का फाइनल नहीं करा. यहाँ तक भी बोला कि कार्ड भी बनवाओ, कार्ड में भी लड़के का नाम नहीं हम छाप पाए क्योंकि गुरुजी ने फाइनल ही नहीं करा था. बट गुरुजी के बताए हुए वचन और गुरुजी के बताई हुई चीजें फॉलो करना बिना क्वेश्चन करे, आई थिंक दैट इज द अल्टीमेट अल्टीमेट थिंग इन लाइफ. एंड गुरुजी ने एक दिन कार्ड भी मांग लिया कि कार्ड दिखा दो, डिजाइन जो करा था लड़के का नाम भी नहीं था. हम वेट कर रहे थे कि गुरुजी जब बताएंगे तब हम कार्ड्स गुरुजी ने को ही देने थे, गुरुजी ने ही आगे देने थे. बट हम वो कार्ड ले भी आए गुरुजी के पास बिना लड़के के नाम. गुरुजी ने कार्ड को अप्रूव करा, फिर हमने वेट करा कि गुरुजी बताएंगे. फाइनली गुरुजी ने लड़के का नाम फाइनल करा नवंबर मिड में और दिसंबर में शादी थी. सो यू इमेजिन, दैट इट्स नॉट, this is how Guruji does things. It doesn't happen in a way that you think it will happen. It doesn't happen like, yeah, Guruji will come, bless you, will tell you the boy's name or anything else in life. कि गुरुजी बस आपको आके बस आपको सिंपली चीजें बता देंगे, ऐसा नहीं होता. उनके अपने तरीके हैं, चाहे वो टाइमिंग्स की वजह से है, चाहे वो कुछ कर्म काटने की वजह से है, चाहे वो कुछ सिखाने के लिए, चाहे वो टेस्ट करने के लिए, जो भी वजह है गुरुजी की. बट गुरुजी हैज हिज ओन वे ऑफ doing things and blessing you. And you have to wait. You just have to wait, be patient. And he's taught us a lot of patience in life. एंड क्योंकि एंड में जो गुरुजी करेंगे वो गुरुजी आप ही के भले के लिए करेंगे. So this is how the marriage happened. I mean, it was completely blessed by Guruji, but Guruji took his time to kind of make it happen and give the boy's name. And it was not easy because you just imagine किसी की शादी हो रही हो, पता ही नहीं है कि आपको किससे शादी हो रही है, बट सारी प्रेपरेशंस हो रही हैं. बट आई थिंक ये गुरुजी ने सिखाया और प्यार इतना है गुरुजी के लिए कि दिमाग चलता ही नहीं है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट. एंड कोशिश यही है कि हमेशा ऐसे ही रहे क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि गुरुजी हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं. और हमें आई थिंक एवरी सेकेंड ऑफ द डे हमें सिर्फ ये प्रेयर्स रखनी चाहिए कि गुरु जी के चरण से हम दूर ना हो, क्योंकि ऐसे भी होता है
कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम तीन चीजें मांगने जाते हैं गुरु जी के पास, जो हम वो तीन चीजें मिल जाती हैं तो हमें लगता है कि बस हमारा यहाँ पे जर्नी खत्म हो गई गुरु जी के साथ। बट ऐसा नहीं है, एक बहुत लंबी जिंदगी है, और इस जिंदगी में कहाँ कहाँ किस किस मोड़ पे चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको गुरुजी की प्रेजेंस आपकी लाइफ में हर सेकंड आपको जरूरत है। आप भगवान के बिना कैसे जिंदगी जी सकते हो, पॉइंट ये है। आपको एक एक सिचुएशन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की प्रेजेंस की जरूरत है। हमें उस टाइम पे एज अ चाइल्ड मुझे जरूरत थी, when as you know when I entered into new phases of my life. Today I have my own children. I need Guruji's presence for them. I need Guruji to keep showering them with as much blessings and love as he did for me. So there is no way that the journey with Guruji will ever, I mean, it can ever slow down. And the journey with Guruji is today is at a very different level. How he's blessing our children, how he's making sure that he's there in their life, whether it is in terms of health, whether it is in terms of their career. छोटी छोटी चीजें हर सेकंड होती रहती हैं। और हमेशा से मेरी ये प्रेयर थी कि जैसे मैं बड़ी हुई आपके चरण पे और आपके प्रेजेंस में, वैसे भी जो अगला जनरेशन है उस पे भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप ऐसे ही उनको ब्लेस करते रहो। इन एवरी thought of mine, in every cell of mine, in every breath of mine, Guruji is there. And I don't think whatever I am today, whatever I am, whatever I feel, whatever my understanding is, how much ever it is because of him. And I would have been completely a very different person if Guruji was not there in my life. एंड हमेशा प्रेयर्स हैं गुरुजी के साथ कि गुरुजी अपनी आ, हमें साथ में रखें, जोड़ के रखें, कभी हमें भटकने ना दे, कभी हमारे दिमाग में ना ईगो आए, ना कैलकुलेशंस आए, ना इफ्स आए, ना बट्स आए। बस हमारी जिंदगी की जो एक गाड़ी है, बस उसको चलाते रहें विथ हिज लव, विथ हिज इमेंस ब्लेसिंग्स। क्योंकि अगर ये हमारी जिंदगी में गुरुजी नहीं आते इस रूप में और हमें ऐसे दर्शन नहीं मिले होते, तो हम कहीं ना कहीं भटक रहे होते। एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। So the miracles and the blessings are umpteen up in every aspect of your life. But I think the biggest blessings are that you're alive, you're breathing, you're fine. You are happy, you are content, you are peaceful. I think these are the biggest blessings of your life. क्योंकि आज इस कलयुग में यही चीजें हैं जो आदमी तलाश कर रहा है और मिल नहीं रही। और गुरुजी कहते थे ये कलयुग है और इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज आदमी के पास सब कुछ है बट पीस ऑफ माइंड नहीं है। He's there is depression, there is cancer, there is divorce, which Guruji used to say, which is just increasing because people are so unsettled in their mind, they're not peaceful. तो गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के सत्संग जाना, गुरुजी का लंगर प्रसाद एक पूरे निष्भाव से खाना और शब्द सुनना, सिर्फ और शिव पुराण पढ़ना, सिर्फ ये ही आज की एक ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद इस कलयुग में आई थिंक एक स्ट्रेंथ दें टू सर्वाइव इन दिस लाइफ, टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड टेक अस टू द अदर साइड. So Satsangaji, I will just say that just keep your faith strong no matter what. Love Guruji with no complication, because Guruji can see right through your heart, right through your mind. There should be no calculations. You cannot fool the God. You just cannot. So keep your thoughts pure, clean towards him, and keep your love for Guruji as much as you can. Growing. एक अच्छे भाव से सत्संग जाना और करना वो बहुत जरूरी है। गुरु जी के सारे बताए हुए नियम फॉलो करना वो बहुत जरूरी है। वो ऐसे नहीं है वो कोई वजह से नियम बनाए गुरु जी ने, वो नियम फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। आई विल स्टॉप हियर
and I will probably see you again soon on the next satsang. Jai Guruji. Thank you. जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आपका बहुत बहुत। आपने सरेंडर के बारे में बात की, बहुत प्यारी बातें की, जो कि मेरे लिए भी बहुत यानी मैंने बहुत कुछ आपसे आज सीखा है। तो जैसे अब न्यू संगत आती है तो उनको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, जैसे कि वो कैसे सरेंडर करें। मेरे को क्वेश्चन आई थिंक करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। आई मीन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से Yeah. कि No, I get it. Yeah. थैंक यू। Yeah. It's not, see, I think surrender is the most difficult thing. People can love Guruji instantly, they can love him. And भगवान से प्यार करना जब सब कुछ सही चल रहा है बहुत आसान है कि नहीं? When everything in your life is perfect, everything is going fine, everything is going the way you want it to go. You want a good job, you want good, a healthy family, you want to be fine. Everything goes fine. It is so easy to love the God. It's so easy to love Guruji. But when things don't go the way you think they should go, that is the time when Guruji automatically teaches you what is surrender. But you will learn it if you keep your faith at that time unshaken. Unshaken means unshaken. And the biggest example for me, I think the biggest surrender, I would say, has been, it is there in every aspect of my life. But the biggest surrender was when I lost my mother. And when my mother, Sudarshan Malhotra, she was an ardent Guruji's follower, and a lot of people know her. She was like, matlab Guruji agar, there's this one auntie who says this also, one Purani Sangat, जब गुरुजी कहते, अगर गुरुजी दिन में कहे रात है तो मेरी mom मान लेती कि रात है. But for her it was like that. But she went through a very painful 3-4 months in the end of cancer, and we lost her. And everything, right from her having gone through that, and the entire journey taught us what is surrender is at the next level. So we had actually surrendered in a way कि जैसे गुरुजी की मर्जी, जैसे गुरुजी चाहें, जो उनकी प्लानिंग है, कोई क्वेश्चंस नहीं है दिमाग में, कोई भी शिकायत नहीं है, कोई कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसे गुरुजी ने प्लान करा है, क्योंकि गुरुजी ने ही प्लान करा है. और उसकी भी बहुत सारे सत्संग हैं कि कैसे गुरुजी ने इतने साल पहले कहा था कि मैंने तेरे को थोड़े इयर्स की एक्सटेंशन दी, वो एक्सटेंशन जब खत्म हो गई, देन शी हैड दिस कंडीशन एंड व्हिच वी रिमेंबर्ड एट दैट टाइम. बट this is surrender. You don't fight against what Guruji has decided for you. And it's not necessary that everything is the perfect thing that he's giving you. I mean, losing a parent is losing a parent, right? So it's not that, yeah, okay, I got something of that level. Yes, but I know in my heart of hearts that she's in a much better world. She's with him. So he teaches you surrender through all of these things. This is one very big example, but he teaches you. But Guruji ने हमेशा ये भी कहा है कि surrender का मतलब ये नहीं है, and I say this very very emphatically, कि you become passive in life. I have seen the संगत becoming very passive कि गुरुजी देख लेंगे, हमें क्या करना है, गुरुजी कर लेंगे, कुछ भी होता है गुरुजी बताएंगे, ये वाला काम गुरुजी. क्यों? गुरुजी ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया to be passive and to leave everything. Rather, you should be working double to do the right thing, and you should get up and do what you have to do, and silently pray to Guruji to tell you and show you the right way to do things in life, then surrender. So yeah, so this is some ways that we've learned over the years. थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमारे यहाँ, जैसे मैं अभी इंग्लैंड से हूँ,
तो यहाँ पे कभी कभी किसी संगत के साथ सत्संग होता है ना, तो बातें होती हैं, तो सत्संग शेयरिंग होती है, तो कभी कभी संगत लिटरली ऐसे ही बोलती है कि गुरुजी है ना देख लेंगे, गुरुजी है ना देख लेंगे। मैं कहा गुरुजी ने होर कोई काम नहीं हैगा, सारा एब्सोल्युटली, कुछ ही देखणगे, बिल्कुल, यू नो। भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ दिमाग ਦਿੱਤਾ है, तो you take care of yourself first। absolutely, absolutely, and it is गुरुजी, your, yes, गुरुजी तो बैठे हैं, वो संभाल लेंगे, जरूर संभालेंगे, बिल्कुल, पर अपनी तो कोशिश करो, बिल्कुल। जो So, मैंने अपने फादर से सीखा है। बिल्कुल। जी और ये इसके ऊपर एक बहुत, आई थिंक देयर आर 2-3 थिंग्स व्हिच आर देयर व्हिच कैन एक्सप्लेन दिस वेरी ब्यूटिफुली। गुरुजी आपको बहुत चीजों के साथ ब्लेस करते हैं। It is जी our duty to take care of those blessings. Like, for example, if it's our health, if it's our, whatever, our physical, our health is, whether it is mental, whether it is physical, it is our duty to take care of our body. It is not, this is something that Guruji has blessed you with. अब ये बोलना, ढीले पड़ जाना और बोलना कि गुरुजी देख लेंगे, ठीक है। it doesn't work like that. You have to get up and you have to take care of the blessings that he's given you, whatever the blessings in your life are. But you have to do your bit. You have to do it rather more, because you should be so grateful to Guruji. If Guruji is there in your life, he's also taught us gratitude. Gratitude for everything, for every little thing in our life. So it is your duty to get up, to be grateful, to work on it, to preserve those things. जब जैसे गुरुजी ने बच्चे ब्लेस करे हैं, नाउ आई my bringing up the children will be very different from a non-sangat, because at the end of the day, I'm answerable to my guru. Like, I bring up my children with the thought that I'm answerable to Guruji. But what am I doing? How am I bringing them up? He's blessed me. Now it's my job to make sure that I do my best, right? And because that's his blessing. So उसके बाद गुरुजी करेंगे ना, वो तो देखेंगे, he will take care. But आपके ऊपर जो blessings हैं, you have to get up. Rather, you should be working double to take care of all those blessings and be in gratitude. Definitely, Auntie. Thank you. Thank you putting it so nicely and explaining thoroughly. I'm really thankful आपके लिए, and गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है कि आपका थैंक यू करने के लिए मुझे चुना गया है। गुरु महाराज जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। आपकी, मैंने ये सबसे पहला सत्संग है आपका मैंने सुना, and I'm sure there will be many more to listen. गुरु महाराज ने आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग कर रखी है, और आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को हमेशा हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें इमेंसली। और थैंक यू आपका, और गुरु प्यारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी सारी संगत को भी ब्लेस करें। थैंक यू आंटी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।